तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शयन। आप सभी को स्वागत करता हूँ फिर से एक नया वीडियो सीरीज में। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो एग्जाम होता है NISM का, उस सभी चैप्टर्स के बारे में। ऑल द चैप्टर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। इस प्लेलिस्ट को अगर आप फॉलो करोगे तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग जरूर 80% से ज्यादा मार्क्स कर जाओगे, क्योंकि मैंने इस पूरा सीरीज को ऐसा ही डिजाइन किया है। At very first, we are going through the some conceptual understanding which help you a lot. From this video only, in this video I am going to discuss all the conceptual thing. Then you will got a note. Okay, we will upload in the notes in our the description section. From there you will get the link and you can view the notes and you can download the notes. From the notes you have to study all the things we are going to discuss in this video. Then आपको क्या करना है, NISM का जो नोटबुक मिलेगा आपको, वहां पर जाके पूरा चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होगा। वो क्या, आपको जाना पड़ेगा हमारा डिस्क्रिप्शन पे, वहां पर एक क्वेश्चन बैंक का लिंक दिया होगा। वहां पर आपको MCQ टाइप का क्वेश्चन मिलेगा एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। एंड इफ यू डू दिस 3 or 4 स्टेप, आई विल गिव यू द गारंटी you will got more than 80% marks. Okay, so let's begin. This screen you can saw all the chapters you have, all the things we have, all the topics we have in this particular chapter 1. So we are going to discuss one by one. Okay, so let's first start with the investment and the financial goal. Look, investment is a very complex thing. Okay, whenever you are investing something, you have to understand one thing, for what you are investing. आप जब भी एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उसमें सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट चीज होगा, दैट इज व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। उस इन्वेस्टमेंट के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप लोग यूट्यूब में, फेसबुक में ऐसा बहुत सारे वीडियो यू कैन सॉ दैट देयर इज पीपल सेइंग दैट आपको मंथ में इतना इतना रुपया का SIP करना है और यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ दिस ईयर। बट इफ यू डोंट नो व्हाट यू विल डू विद दिस मनी, देन यू आर एक्चुअली डूइंग नथिंग. You are doing a nonsense thing, because if you don't have any objective, then what do you do with the money? If you don't have the objective of retirement plan, then what you will do with that money? So that is a very important thing for you or any investor, those who are investing in mutual fund, in stock market, bonds, asset, FD, in anywhere. There must be a goal. If you look for this on a slide, there is a girl, let's say his name is Shalini, who is 8 years old. And he wants to become a space scientist. What is his goal? His goal is becoming a space scientist. Same by said, there is Ravindra, whose goal is he want to retire, right? He want to retire here and maybe he's in mid age. He said age is now 35, 36, 34. After 15 years or 20 years, he have to retire from his job. So he need a retirement fund. Okay. Another is Surinder Singh. He tried to buy a house. What is his objective? He want to make a house. Another is Mr. D'Souza. He has retired and need to invest the benefits and return regular income for life. She already retired from his job and she got the regular payment from the government or retirement scheme. Now he want to invest that money, or she want to invest his lump sum in a particular way that can give him a good amount of regular income, right? So if you look at the 4 examples there, every example has a different need and their objective is very different. When you become a mutual fund distributor, that is important for you, the understanding of your client need. If you don't understand your client need, then you cannot make his plan, make how and where you have to invest. Like there is Shalini. Shalini is just 8 years old and maybe considering that he want to become a space scientist, that will take more 10 years. Then after 10 years, she needs the answer now, right? So she can invest in equity, because equity market is riskier. And in equity market, one thing I just to say, in equity market, that is a statement that if you are investing in equity market, you to trunk your money for 5 years, minimum 5 years. Otherwise, you will not earn the return, because my equity market is more volatile. There is Mr. D'Souza. She is already retired and she cannot play with her money and she cannot take her risk. Okay, she cannot take too high risk. So she needs a normal income, normal return. So what is the best investment for is the debt scheme, the government debts
or there are money market instruments are there, so she can invest there. How you will find this investment channel? If you don't know his what is the objective of investment, you cannot find this the asset class where to invest. So this is very important. Always start with why. Why he or she want to invest. This is very, very important thing if you are becoming a mutual fund distributor, financial advisor, or for your personal finance. You have to assess why you are going to invest. Okay. I think these things are clear. I will also explain by my notes. Next is the turning dreams into the blueprints, defining your financial goal. Look, there's one thing. If Shalini is 8 years old and today she is thinking that she want to be space scientist, which today's cost is around 10 lakh. But after 10 years, when she become 18, the 10 lakh is not efficient because there is inflation. The money is losing the power. I think everyone knows about the inflation. If you don't know the inflation, please comment it down. I will make a video and I will show you how inflation works, how the things work. If you don't know, please comment it down. And if you know, then you can understand that every time inflation is increasing. So after 10 years, the 10 lakh money is not efficient. She will need more money. Like that is the amount, 1 crore 7 lakh 94. If you look for this number, so it is a change for every financial need and financial objective, financial goal. You have to consider inflation also. Suppose you invest 10,000 today and you got a 12,000 money after 5 years. Okay. And you are happy that I got 2,000 return. But actually things that you didn't get the 2,000 return because after 5 year or 10 year, the amount of 2,000, the purchasing power of 2,000 also decreases. Why? Because of the inflation. इन्फ्लेशन जब भी आएगा आपका पर्चेसिंग पावर जो है ना वो कम हो जाएगा. एक चीज समझो, आज आप बाजार में आलू कितने जाओगे तो आपको 10 रुपए में 4 आलू 2 आलू 1 केजी आलू मिल जाएगा. आज से 10 साल बाद मिलेगा? नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? Because of the inflation. Money is always losing the power in every economy, not just only India. In India, the inflation rate is high, but in the developed country, the inflation rate is low. Consider the inflation in your investment decision. Whenever you are making an investment decision, please consider the inflation. Okay. So next we have to the next slide. The foundation of savings and investment. Look, if you are going for the invest, the first step is the savings. You have to save the money, then you can invest the money. Okay. The first thing you need to do the savings. If you didn't save anything, you cannot invest. If your monthly earning is 20,000 and you are saving just 5 rupees, then you cannot invest because with the 5 rupees you cannot do anything. So minimum you have to save 5,000, then it can only invest, right? Right, there is some framework. If you look for the framework, there is safety, liquidity and returns. What this means? The safety. Whenever you going for an investment, well, the thing is called safety. Either आप लोगों के पापा भी बोलता है कि एफडी पे जाके इन्वेस्ट कर लो, राइट? बट आप लोग बोलोगे नहीं स्टॉक मार्केट पे कर लो, पर आपको भी पता है एफडी ज्यादा आपका क्या है सेफ है, राइट? बट उसमें रिटर्न कम है, पर आपका जो स्टॉक मार्केट है उसमें रिटर्न ज्यादा है. तो यहाँ पर हमेशा खेल होता है कि अगर रिटर्न ज्यादा होगा तो उसमें रिस्क ज्यादा होगा, अगर रिटर्न कम है तो उसमें रिस्क कम है. तो एफडी पे आपका रिस्क कम है. तो आप जब भी एक आदमी का प्रोफाइलिंग करोगे जो आपका क्लाइंट है और आप अपने खुद के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, सो यू हैव टू असेस द हाउ मच परसेंटेज रिस्क यू कैन टेक. व्हाट आर द रिस्क you can take? And consider that you are earning 1 crore in a month, okay, and you are invested 1 lakh money in a stock market and you lose the money. That things you bothers. The 1 lakh rupee didn't bother you. But if you are earning 2 lakh rupees and you are investing 1 lakh, and if you lose this 1 lakh money, then this money will, then
ये चलिए जो भी पैसा जाएगा ना आपका नींद से जो भी है वो सब कुछ छीन लेगा। इंडियन मिडिल क्लास के लिए साथ ऐसा ही होता है। ओके, सो ऑफकोर्स हमेशा रिस्क को प्रोफाइल करना पड़ेगा, रिस्क को समझना पड़ेगा, आपका रिस्क कितना है, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, उस सबसे बारे में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वह लिक्विडिटी। लुक, व्हाट इज लिक्विडिटी? Liquidity is if you are buying something today, look, I buy this watch. Can you see this? Yeah, you can see this. If I go to sell this watch, can I sell easily? What? Yes, you can do by OLX or something else, but I will find some difficulty, right? Right or wrong? Yes. But if I purchase gold, then वो तो तुरंत बिक जाएगा ना, क्योंकि गोल्ड का वैल्यू ज्यादा है, इस घड़ी का कम है और गोल्ड सभी लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं। तो ऐसा ही घड़ी सब लोग को नहीं चाहिए और ये मॉडल सब क्यों कह रहा है, किसी को बस नहीं चाहिए, पर गोल्ड सभी को चाहिए और गोल्ड सेम होता है, गोल्ड में कुछ 19-20 का फर्क नहीं होता। सो गोल्ड इज अ highly liquidated product, whereas this watch is not. So whenever you are investing in something, you have to bother these things, have to take care of these things, how efficiently, how conveniently you are selling your asset, right? If you look for the small cap stocks, small cap stock मतलब बहुत ही छोटा जो कंपनी होता है, जो लिस्टेड कंपनी है, उनका स्टॉक आप इजीली सेल नहीं कर पाओगे। पर व्हाट आर द बिग स्टॉक्स? रिलायंस तुरंत बिक जाएगा मार्केट पे, तुरंत इन कुछ जस्ट इन सम सेकंड तो मार्केट में आपका शेयर बिक जाएगा। पर ये जो शेयर है ना आपका, जो स्मॉल कैप का शेयर है, लाइक एबीसी लिमिटेड कंपनी, कोई पहचानता नहीं है, क्यों खरीदा गया? नहीं खरीदेगा, राइट? सो whenever you are investing something, you have to take care of these things, that you are investing on a theme that always matter with the liquidity things. How efficiently you are selling the asset or you are getting your money back, right? There's a returns. What is the potential income and the capital appreciation? अगर लास्ट 2 साल का और 1 साल का देखोगे तो गोइंग ने अनबिलीवेबल रिटर्न दिया, राइट? उस तरह से इक्विटी मार्केट ने नहीं दिया। अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म के लिए, तब देखोगे आप इक्विटी मार्केट आर गिविंग more return, but in short term gold is giving more return. So you have to assess the current market situation, economic and all of the things, and you have to assess the risk also. But there is a thing that risk, I already stated that risk always comes with return. High return means high risk, low return means low risk. But in the case of gold, we saw the past 2 years, in the gold there is risk is low, right? And the value of the gold is also, the return of the gold is also increasing, right? So whenever you are investing something, you have to take care of those things. What is the best return, right? I already talked about the inflation. If you are investing with the FD is giving 4, 5, 7% interest, but generally in India, like a country like India, the inflation rate is 7%. You invested 100 rupees, after 1 year, you are in the FD, you got that 105 rupees, but the inflation rate is 7. So actually you are losing 2 rupees because 107 is the inflation money, inflated money, and your investment is 105. So you are actually losing value of your money. So it is very important to assess what is the difference, what is the inflation rate, what is the return. So ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे का बहुत सारे चैप्टर है रिस्क एंड रिटर्न के ऊपर, हम लोग बहुत डिटेल में सभी चीज का डिस्कशन करेंगे। पर अभी के लिए आप जान लो, रिटर्न्स को आपको हमेशा इन्फ्लेशन जो भी है उसको बिट करना पड़ेगा, एंड आप कितना रिस्क ले सकते हो उस चीज से आपको अकॉर्डिंगली फिक्स करके चलना पड़ेगा, ठीक है? whatever you are investing. So in this slide we are going to discuss that what are the asset classes. Asset classes मतलब आप किस जगह पे अपना मनी, अपना जो पैसा है वो सब कौन सी एसेट में आपका पैसा आप डाल सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। नंबर 1 पे जो आता है वो है इक्विटी मीन्स whenever you are investing in equity stock, and you are become a owner of that company as per the company at 2013. So when you have to invest on equity, if you are investing for more than 5 years, this is my personal suggestion, and as per the rules और SEBI और म्यूचुअल फंड अगर भी इन्वेस्ट करो इक्विटी में, वो भी दो जाएगा कि आपको 5 साल के लिए आपका मनी यहाँ पर छोड़ना होगा इफ यू वांट टू गॉट अ हायर रिटर्न। तो फर्स्ट थिंग इज द इक्विटी। इक्विटी में हाई रिस्क है और यहाँ पर हाई रिटर्न है। यहाँ पर बहुत सारे थिंग होते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, एंड आपका होता है
मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप। लार्ज कैप में मॉडरेट सा रिटर्न मिल जाता है, रिस्क भी कम है। मिड कैप पे उससे ज्यादा रिटर्न और उसके ज्यादा रिस्क, और जो स्मॉल कैप उसमें हाई रिटर्न है, हाई रिस्क। सो दिस थिंग्स ऑलवेज कम। इक्विटी मीन्स you are buying a Reliance share, then you are investing in equity, and you are becoming a owner of the Reliance. ओके, पर इसका मतलब नहीं कि आप कल आपको जाके बोलोगे कि मैं रिलायंस का मालिक हूँ, मुझे बोर्ड मीटिंग के बुला दो, ऐसा नहीं होता। आपको शेयर परसेंटेज मिल जाएगा। देयर इज अ फिक्स्ड इनकम। व्हाट इज अ फिक्स्ड इनकम? फिक्स्ड इनकम मींस you are putting money somewhere from where you are getting a regular income. Means if you are investing in a bond, in a government bond or corporate bond, then what will happen? You will get a fixed amount of return. Means you are giving a loan to a company. आप बैंक से लोन ले तो बैंक आपको क्या करता है? बैंक आपसे एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। द सेम थिंग्स हैपेंस, बट इन केस में आप देते हो कंपनी को लोन, और कंपनी आपको एक रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट करता है, ठीक है। तो दिस इज द फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम में आपका आता है गवर्नमेंट का बॉन्ड्स आता है, मनी मार्केट्स का बहुत चीजें आते हैं, आपके आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ऐसे बहुत सारे चीज है। इसको भी हम लोग आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। देयर इज अ रियल एस्टेट। आप बोलोगे रियल एस्टेट में तो इन्वेस्टमेंट करना है, और रियल एस्टेट तो स्टोर के लिए मैंने देखा है जमीन आसमान का आपका रिटर्न मिलता है। एब्सोल्युटली राइट। But if you comparing this with the actual data and actual equity market or actual thing, then you will see this. If you are put your money for the long term, then equity market will give the most highest return all these four asset, right? Real estate में क्या होता है कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने लैंड खरीद लिया, राइट? लैंड से आपको कैसे कैसे इनकम मिल सकता है? आपको लैंड में कुछ आप रेंट पर दे दी हो, आपको उससे रेंटल इनकम मिल जाएगा। if you are selling the land after 5 or 6 or 10 years, then आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी उसमें मिल जाएगा, राइट? सो दिस इज द रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में और एक चीज आता है, रिट्स आता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये क्या करता है कि ये सब एक म्यूचुअल फंड की तरफ ही है, जो मानी को लोगों से पैसा खींचता है, और उस पैसे से कुछ बिल्डिंग्स बनाता है, कुछ रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी खरीदता है, देन उसको रेंट में दे देता है, और उस रेंट से जो भी आता है वो आप लोगों के साथ जो इन्वेस्टर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का दो ही तरीका है। एक तो आप खुद से जाके बाय कर लो, और दूसरा है कि आप रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है रिट्स, उसमें जाकर इन्वेस्ट कर सकते हो। रिट्स में आप बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स के साथ जा सकते हो, बट इन द केस ऑफ इफ यू आर गोइंग फॉर अ सोल्ड बाइनरी रियल एस्टेट, देन इट विल टेक मोर मनी, राइट? नाउ देयर इज कमोडिटीज। Like commodities, it's very interesting, because if you're investing in commodities, you think that I am investing on gold because I buy a jewelry. No, you are wrong. In the jewelry, there is a lot of problem. That's not an investment in country like India. I think this is my personal belief. In country like India, the commodities unearned investment. If you are buying a gold jewelry, silver jewelry, because you can't sell this. If you are selling this, आपका मम्मी बीबी पापा जो भी है वो सब आपके पीछे आ जाएगा। सो गोल्ड कमोडिटी से बहुत सारी चीज़ों ट्रेड होता है, ठीक है। कमोडिटी आपका मसला आ जाता है, आपका गोल्ड जाता है, सिल्वर आ जाता है, ऐसे बहुत सारे चीज कमोडिटीज में ट्रेड होते हैं। बहुत सारी चीज ट्रेड हो रहे हैं हर दिन, कुछ ना कुछ कमोडिटीज में ट्रेड होते ही जा रहे हैं, ठीक है। कमोडिटीज इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। Another thing to say about the commodity is, if you are buying a silver or gold, then what is happen? You will not get a regular income. Like that is equity. In equity, you get a regular income by the dividend, right? In fixed income, you also get that. In real estate, by the rental income, you also get that. But in this case of commodity, if you're buying gold and silver, you will not get a regular return. But आपको मिलेगा कैपिटल एप्रिसिएशन में। आज अपने 10,000 में गोल्ड खरीदा, वो जगह वो आज के बाद 10 साल बाद हो गया 1 लाख। So that is the difference in the capital appreciation you will get. So this is the 4 major asset class। मेरे नोट्स के साथ भी आप लोगों को समझ दूंगा, तो आपको वो भी बहुत इजीली हो जाएगा। So now there is some comparative looks how these things work. I already talked about that. Or if you look for the equity is a long term. मैं बोला आपको long term object के लिए, if you look for the fixed income, stability income देता है आपको, मैंने ऑलरेडी बोला। रियल एस्टेट इनकम प्लस एप्रिसिएशन, मैंने बोला। कमोडिटी स्टोर वैल्यू हेजिंग में बहुत सारे काम आता है। रियल एस्टेट, इफ यू आर मेकिंग अ पोर्टफोलियो एंड इफ यू आर कंसिडरिंग 10% अमाउंट ऑफ गोल्ड, ऐसा माना जाता है कि अगर स्टॉक मार्केट गिरेगा
मार्केट गिरेगा, मार्केट खराब परफॉर्म्स करेगा तो गोल्ड का प्राइस अपने आप जाएगा और आपको एक एज मिल जाएगा, आपको एक सेफ्टी मिल जाएगा. दैट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल. इफ यू नो दिस, if you look for the now time market is down but gold price is very high. Also there is a lot of factor, but ये historically ये काम करता है and gold is very safer about this. This is the इक्विटी पे आपका शेयर्स मिल जाएगा, ठीक है. फिक्स्ड इनकम में आपका फाइनेंशियल बॉन्ड्स, डिपॉजिट, ये सब मिल जाएगा. रियल एस्टेट में फिजिकल, फाइनेंशियल, आई टॉक अबाउट रेट्स आल्सो. और कॉमोडिटीज का पता है, फिजिकल मिल जाएगा. फाइनेंशियल ईटीएफ्स आपको पता ही होगा, आजकल बहुत ट्रेंड में, extreme traded from the best way to invest in gold. If you look for the other things, the income, dividends, पास हो गया, बहुत सारी चीजें आप जाके ये सब एक बार रीड कर लेना. यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है. Okay, now we are looking for the risk. Look, whenever we are going for the investment, there is a one key important thing, that is risk. Without risk, you cannot invest and you cannot beat the inflation. That is the statement I am giving you, and that is absolutely right. Why? What is the safe investment for you? That is FD, the fixed deposit, right? In the fixed deposit, you are getting 5% return, but your inflation is 7%. Then actually you are losing your money, right? But whenever you are trying to beat that, that is some risk. आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि बॉन्ड इज वेरी इजी, बॉन्ड को अगर आप इन्वेस्टमेंट करो वहां पर आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा. नहीं, उसमें भी गेम है. ओके, उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क का गेम है. मैं समझाता हूँ आपको कैसे. इंटरेस्ट रेट रिस्क एक बहुत गहरा और अच्छा कॉन्सेप्ट है. मैं आपको एक बार में समझाऊंगा, आपको समझ आएगा. लुक, यू बाई अ बॉन्ड एट 8% इंटरेस्ट रेट. आज आपने एक बॉन्ड खरीदा जिसका मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 8%, राइट. 10 दिन बाद मार्केट पे एक नया बॉन्ड आया जिसका है इंटरेस्ट रेट 10%, राइट. या आई गॉट दिस. ओके, 20 दिन बाद आपको अर्जेंट मनी चाहिए और आपको बॉन्ड बेचना है सेकेंडरी मार्केट में. सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड बिकता है, ठीक है. अपने प्राइमरी मार्केट से खरीदा 8% से और सेकेंडरी मार्केट में जाके आपको सेल करना है. And if you don't know what is primary market and secondary, just Google it. It is very simple thing. You will Google it and you will find the answer. तो आपको 20 दिन बाद जाके पैसा लगेगा. सो एक इन्वेस्टर जो आपसे खरीदा था बॉन्ड, वो देख रहा है कि मार्केट पे एक बॉन्ड मुझे दे रहा है 10% का इंटरेस्ट और आपका बॉन्ड दे रहा है 8% इंटरेस्ट. वो कौन सा खरीदेगा? ऑफकोर्स 10%, बिकॉज दैट इज गिविंग हिम मोर रिटर्न. तो सेंस वहां पर ही बनता है, राइट. सो देयर इज अ रिस्क दैट because of the 8% of the interest rate, you have to discount the bond price. अपने 1000 में खरीदा था, इंटरेस्ट रेट के गिरने से वजह से आपको शायद 988, 37, 988, 55 में आपको बेचना है. दोनों बॉन्ड 1000 पे ट्रेड हो रहे हैं, जो 8% का था, जो 10% 9% का था. सो दोनों ट्रेड हो रहे हैं 100 रुपीज पे, सॉरी 1000 रुपीज पे. पर आपको डिस्काउंट में आपको बेचना होगा, तभी जाके वो बंदा खरीदेगा. सो दैट इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड. इफ यू डिडंट अंडरस्टूड प्लीज कमेंट इट डाउन, और हमारे नोट्स में भी है, आपको सब मिल जाएगा. देयर इज द लिक्विडिटी रिस्क. मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझ दिया, तो उसमें अभी मैं जाके नहीं समझाऊंगा. देयर इज द ऑप्शन रिस्क. व्हाट इज दिस? आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट इफ यू आर इन्वेस्टिंग टुडे एट 5%, but in the inflation is 7%, then actually you are losing your money value. You are losing the purchasing power of the money. So that is the inflation risk. Okay, you understood, I think. There is a market risk. Market risk means अभी अगर देखोगे तो मार्केट डाउन है. पिछले 1 साल के जब से इलेक्शन गया है उसके बाद से मार्केट ओवरऑल डाउन है. सो दैट इज अ मार्केट रिस्क. सभी कंपनी का लॉसेस चल रहा है, सभी कंपनी का चल रहा है, उठ रहा है, दम रहा है. जो निफ्टी वो गिरा हुआ है, तो ऐसे ऐसे चल रहा है. मार्केट डाउन, थोड़ा डाउन है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है. जो बुल रन था वो खत्म हो चुका है. दैट इज अ मार्केट रिस्क. पूरा मार्केट, एक न्यूज आया कि टैरिफ जिस दिन आया उस दिन पूरा मार्केट गिर गया. जिस दिन इस बार का इलेक्शन का रिजल्ट आया उस दिन पूरा मार्केट गिर गया. सो दैट इज अ मार्केट रिस्क. सो दिस आर द थिंग्स. दैट इज अ क्रेडिट रिस्क. द क्रेडिट रिस्क मीन्स इफ यू आर ओके. क्रेडिट रिस्क अब मैं आपको समझ देता हूँ कि आपने एक कंपनी का बॉन्ड खरीदा और कंपनी ने आपको जो इंटरेस्ट पेमेंट है आपको पे नहीं किया, राइट. आप एनालॉजी समझो कि आपने लोन लिया बैंक से और आप इंटरेस्ट नहीं पेमेंट कर रहे हो, तो बैंक के लिए हो गया क्रेडिट रिस्क. सेम विथ यू व्हेन यू आर इन्वेस्टर एंड द कंपनी इज
the borrower of the loan. Then the same thing will happen, and this is the credit risk, the very simple term. Now see this, the architecture blind spot. What is the, that is something I designed, that what is the problem in our brain, what is the behavior we have done during the investment. First is the hard mentality, following the crowd, leading you to buy high and sell low. मार्केट में आपने जाके देखा कि इलेक्शन आया, इलेक्शन का टाइप का आपको याद होगा, जिस दिन ओपिनियन एग्जिट पोल का ओपिनियन ला रहा था, उस दिन मार्केट ने हाई लिया था, राइट। उस दिन सभी ने को लगा था कि अगर इलेक्शन डेट में और जाएगा, सभी ने बाय कर लिया। Why you are buying? Because everyone is buying. This is why you also are buying. So that is the hard mentality. And actually में जिस दिन इलेक्शन आया, उस दिन पे आपका मनी लूज हुआ. So that is the hard mentality. You are following the trend. ट्रेंड क्या कर रहे हो, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट पे वही लोग प्रॉफिट करता है जो दूसरे लोग का नहीं सुनते, खुद से काम करते। सो यू हैव टू वर्क विद द वैल्यूएशन, यू हैव टू वर्क विद द पर्सनल थिंकिंग, नॉट जस्ट बाय इमोशन, नॉट बाय सीइंग अदर्स, व्हाट अदर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर तो इस ये सबसे बड़ा चीज हार्ड मेंटेलिटी, ठीक है। ये बिहेवियर होता है, सबका होता है, सबका मार्केट में कमन है। और ये बिहेवियर चल रहा है ना, तो मार्केट नहीं कम रहेगा। देयर इज अ लॉस अवर्शन, trading losses more than you value, equivalent gains causing you to overlay conservative. Means you don't want to lose anything. You know that FD is given below return, but still you stuck with FD because आपको खोना नहीं है। So this is the loss aversion. ये सब होता है हमारे मिडिल क्लास पैमिस के अंडर में, right? This is the over confidence. You are becoming Harshak Mehta. You know everything. You will manage everything, but that is not. Market will correct you. By one day, market will correct you. Market is not efficient, but by the time market become efficient, and market will correct you. In the case of Harshak Mehta, that also happened. So, और कभी भी आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, आपका हमेशा रैशनल सोचना है। Whenever you are picking a stock, whenever you are going for the investment, don't be emotional, don't be overconfident, always be rational. Then is the recency bias. आप देख रहे हो आज गोल्ड का प्राइस हाइक गया, आप जाके गोल्ड खरीद ले रहे हो। देयर इज अ रिसेंट जो भी हुआ उसको देख के आप जाके गोल्ड खरीद लो। लाइक आज का डेट है 4 जनवरी 2026, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। उससे पहले सिल्वर का क्रैश आया 15% का, उस गेट 1 जनवरी या 2 जनवरी को सर आया। 31 दिसंबर को सबको लगता था कि सिल्वर हाई पे जाएगा, सिल्वर और जाएगा और जाएगा और जाएगा, बट सडनली द मार्केट क्रैश with 15%. And those who are investing by just recency bias that yeah, the market is going up, I also buy, silver will go up, they lose their money. So that is what recency bias, and that is also happening in the case of election poll का जो आपका exit poll का result आया था, उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। Next is the confirmation bias. What is confirmation bias? Seeking out information that supports your existing beliefs while ignoring contradictory evidence. What that mean? आप समझ रहे हो कि आपने सोच लिया कि मुझे अभी तो गोल्ड खरीदना होगा, राइट। आपने सोच लिया आपको गोल्ड खरीदना, पर आप देख रहे हो, आपने रिसर्च किया तो बहुत, एंड यू विल फाइंड दैट इज नॉट टाइम फॉर बाइंग द गोल्ड बिकॉज गोल्ड इज हायर, बहुत हाई प्राइस में। पर आपने कुछ जगह से और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जो इस स्टेटमेंट को, जो गोल्ड बहुत हाई पे ओवर वैल्यूड है, आपको नहीं खरीदना चाहिए, रुकना चाहिए, गोल्ड गिरेगा उसके बाद खरीदना चाहिए। दैट इज अ बेसिक स्टेट। बट पहले से आपने सोच लिया कि मुझे अभी गोल्ड खरीदना ही होगा जो कुछ भी हो जाए। सो यू आर स्टार्टिंग द फाइंडिंग दैट एविडेंस दैट सपोर्ट योर दैट स्टेटमेंट दैट गोल्ड विल गो मोर अप, राइट। सो दैट इज द केस ऑफ रिसेंसी बायस। गोल्ड का एग्जांपल शायद करना तो जाएगा, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। यू थिंक दैट अडानी विल गो more and more up, but you find lot of red flag there, lot of red flag. But you saw a management report, you saw the management interview, and you could think that yes, he is saying that Adani will go up and goes up, so you are going to buy the shares, the shares of Adani. But actually the scenario is different. But you आपने पहले से सोच लिया मुझे बाय करना है, तो आपने क्या किया, उस चीज के लिए काम किया कि मुझे ऐसा ही इंफॉर्मेशन समझना है, ऐसा इंफॉर्मेशन खोजना है,
जो मुझे बोले, जो मेरा मेंटालिटी को, जो मेरा बिहेवियर को सपोर्ट करे कि मुझे जाके इसको पाई ही करना है, कोई नेगेटिव चीज इसमें नहीं खोजना है, मुझे पॉजिटिव से खोजना है. तो दिस इज द अदर बायस इज कंफर्मेशन बायस. अदर इज सेट. ओके, सो नाउ इज फैमिलियरिटी बायस. फैमिलियरिटी बायस बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है. इफ यू नो दिस, आप क्या करते हो ना, इसमें आप ऐसा कंपनी का स्टॉक खरीदते हो, ऐसा कुछ ही करते हो जिसको, जिस कंपनी के बारे में आपको पता है, और दूसरे जो चीजें उस सबको आप इग्नोर करते हो और अपना पोर्टफोलियो में ऐसा कंपनी रखते हो जिसको आपको पता है. लाइक यू आर वर्किंग ऑन इन्फोसिस, देन यू ओनली बाय द इन्फोसिस स्टॉक. You are working in the company of Tata Steel, then you are only buying the Tata Steel stock because you know the management, you know the company, you know the structure of the company. This is why you are buying, and you didn't invest your money into the other stocks. So what will happen? That leads to poor diversification. When the market will fall, or when the Tata stock will fall, your whole portfolio will fall because you just invested in the, you have the 100 rupees. Okay, you have the 100 rupees and you invested the full 100 rupees into the Tata stock. So whenever the market will fall or Tata stock will fall, your value portfolio valuation also will fall with that regards. But if you invest that money, the 100 rupees with you are buying a 10 rupees of Reliance, 10 rupees of Zudio, 10 rupees of others company, then what will happen? If the Tata stock will fall, the other stock will remain same. So that time you will got a good diversification, and that will help you to reduce your losses, and that leads to a good diversification, and that is the basic thing of investing. Diversification is the main thing, and if you don't know what is diversification, please understood this. आपने ऐसा कुछ एसेट खरीदना जिसमें कुछ डाइवर्सिफिकेशन नहीं है. यू नो व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? Diversification means you are buying a basket of stocks, basket of bonds, or basket of things, right? It is very important, diversification, because whenever you are making a portfolio of yours, if you buy 10% gold, 10% silver, 10% equity, 30% bond, or like something like that, then what will happen if equity market falls? Other things will review. इक्विटी जब गिरेगा ना, गोल्ड का प्राइस राइज होगा, तो उसमें आपको एक चीज मिल जाएगा, आपका पूरा पैसा नहीं जाएगा, आपको हेजिंग मिल जाएगा उसमें. तो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज अबाउट द फैमिलियरिटी बायस. ओके, now look this. This is about the how much risk you can take. I am talking about the risk. Risk बहुत important है. So that is need to take risk. How much return do you need to achieve your goals within your timeline? A higher required return means greater need for risk. You need 1 crore after 5 years. Is it practically possible? Yes, possible. Then you have to take high risk. What you can do? You can go for the cricket betting. I am not suggesting, but you are going for the cricket betting. उसमें क्या रहा? 50% चांसेस आपका पैसा आएगा, 50% चांस है पैसा जाएगा, और आपका हाई रिटर्न में मिलेगा. अगर मिलेगा तो हाई मिलेगा. सो दैट इज व्हाट द नीड टू टेक रिस्क. आपको हाई रिस्क चाहिए. आपको कितना रिस्क लेना पड़ेगा, उसका जो भी कैलकुलेशन है वो आपका रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, आपका ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है. इसलिए मैंने जब ये सेशन स्टार्ट किया, मैंने उससे सबसे पहला एक चीज ही बोला कि जाके देखो आपका नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. अगर आपका ऑब्जेक्टिव है आज से 50 साल बाद कुछ करने का, यू कैन टेक हाई रिस्क बिकॉज द टाइम प्लान इज बिग. द टाइम लाइन इज बिग. So that is the need to take risk. If you need a amount that if you are earning 30,000 per month and you want to make a lump sum of 10 lakh in 1 year, so you can take a moderate to high risk for achieving this goal. So goal जो भी होगा उसके साथ आपका रिटर्न, रिस्क, ये सब लिंक्ड है. ओके, the second is the ability to take risk. आप कितना रिस्क ले सकते हो. मैंने वहां पर जो डिसूजा था उनका एग्जाम्पल से बोला था, उनका भी 60 ईयर्स ओल्ड है. 60 ईयर्स में अगर कुछ भी अगर गलत हो जाएगा, मार्केट अगर 20 पॉइंट से गिर जाएगा, 20% से गिर जाएगा, उनका तो हार्ट अटैक आके वहां पर ही खेल खत्म ना. सो दैट इज द एबिलिटी टू टेक रिस्क. हाउ मच रिस्क यू कैन टूक, हाउ मच रिस्क यू कैन टेक, दैट इज अ फाइनेंशियल थिंग. यू हैव टू अंडरस्टूड दैट. You cannot, a boy earning monthly 20,000, he cannot bet his 20,000, right? He can bet 1,000. So that is ability to take risk. If you are seeing someone who's earning 40,000 and he is taking the risk of 5,000, and you are earning 7,000, you are taking the risk of 5,000,
then it will not work, right? Because उसका एबिलिटी ज्यादा है आपसे, आपका कम नहीं है। आप जाके सीना चौड़ा करके जा रहे हो, अगर रिटर्न मिल जाएगा तो अच्छा, अगर नहीं मिलेगा then what will happen? Then we will go to bankrupt, right? So that is the thing. There's a willing to take risk. हमारा साइकोलॉजिकल थिंग है। आपको अगर पापा को जाकर बोलोगे पापा मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, क्या बोल रहे हैं, रखा रहेगा। क्यों? क्योंकि पापा नहीं चाहते रिस्क लेना होगा, पर आप चाहते हो रिस्क लेना। आपको कमाना है पैसा, आपको चाहे 2%, 25%, 35%, 50%, 100%, आपको बनना है अगले हर्षक में था। सो दिस इज व्हाट द willing to take risk define. If you are taking the high risk, then willing to take risk. So willing to take risk is very important. If you don't want to take high risk, then don't take it. Simple, right? तो इस तीनों चीज बहुत ही काम करता है। एक तो नीड टू टेक रिस्क, क्यों आपको रिस्क लेना है, आपको जानना पड़ेगा मुझे इस चीज के लिए रिस्क लेना है, आपको समझना पड़ेगा मुझे इस चीज के लिए रिस्क नहीं लेना। Then is ability to take risk, why I am taking risk, and how much risk I can took, how much risk I can take. That is the most important thing. There is a willingness to take a risk. मेरा इच्छा कितना है उस रिस्क को लेने का। So these things are very important. So if you are going to invest और आपको अगर क्लाइंट भी कोई है तो उनको भी ये चीज जरूर समझाना। This is the strategic asset allocation. Look, there is the asset allocation जो होता है कि आपने अपना पोर्टफोलियो कैसे डिवाइड किया। आपने 20% इक्विटी में डाला, 50% डिवेंचर में, बाकी का कमोडिटीज में, आपने कैसे उसको संभाला और उसके बाद कैसे कैसे उसको मैनेज किया। एक होता है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। व्हाट इज दिस? क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म टारगेट एलोकेशन बेस्ड ऑन योर गोल्स, रिस्क प्रोफाइल, 60% इक्विटी डेप्थ, दिस इज योर ब्लूप्रिंट, मोस्ट लॉन्ग टर्म एंड गोल ओरिएंटेड, दिस इज स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। देयर इज अ टैक्टिकल, मेकिंग शॉर्ट टर्म डायनामिक शिफ्ट्स फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एलोकेशन टू कैपिटलाइज मार्केट अपॉर्चुनिटीज। मीन्स आपका अपना पोर्टफोलियो 50% इक्विटी एंड 50% गोल्ड में दिया है, ठीक है। पर राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 4th January 2026। नाउ गोल्ड इज गिविंग द हाई रिटर्न। सो आपने क्या किया, आपका जो यूनिटी का स्टेक था उसको सेल कर दिया और आपका 20% सेल करके आपने क्या किया, 30% उस मनी को ले गए अपने गोल्ड पे। सो आप क्या कर लिया, 80% को अपने इन्वेस्ट कर दिया गोल्ड पे एंड 20% इक्विटी। सो दैट इज टैक्टिकल। अपने मार्केट का सिचुएशन का फायदा लेके आपने एसेट एलोकेशन चेंज कर दिया। और एक क्या, आपने 50-50 रहने दिया, जो होगा देखा जाएगा, 50-50 होगा। ओके, सो दैट इज द स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एंड दैट इज द टैक्टिकल। आपने चेंज कर दिया मार्केट मूवमेंट के अनुजाई, ठीक है। इफ यू लुक फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज मेंटेन स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी, पावरफुल ऑफ रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग दैट इज अनदर वेरी गुड कॉन्सेप्ट। जैसा मैंने बोला कि आपने एसेट एलोकेशन किया, राइट, एसेट एलोकेशन में किया आपने 50% 50% इक्विटी, 50% डेप्थ। एक साल बाद आपने जाके देखा कि आपका जो इक्विटी है वो 60% से बढ़ गया और आपका डेप्थ है वो 40% से गिर गया, आपका 40% हो गया, उसमें 10% लॉस आया, 10% डाउन आया। सो आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, क्योंकि आपका जो गोल है वो आपको बताता है कि 50% आपको इक्विटी में करना चाहिए, 50% डेप्थ। सो व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आपका जो 10% एक्स्ट्रा था, 50% जो 60 हो गया था इक्विटी में, और 10% आप सेल करके डेप्थ इन्वेस्टमेंट में वापस से खरीद लेते हो, वापस से डेप्थ इन्वेस्टमेंट में खरीद लेते हो, डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देते हो। सो नाउ व्हाट विल बिकम द 50 and 50, द बोथ इक्विटी एंड डेप्थ 50। जो बढ़ गया था इक्विटी वो आप आके गिर गया, फिर से आपने सेल कर दिया इक्विटी, और अगर 50-10% जो एक्स्ट्रा था वो आप सेल कर दिया, हो गया 10%, एंड जो 40 था उस 10% जो सेलिंग ऑफ इक्विटी अमाउंट है उससे पे 10% डेप्थ कर दिया। फिर क्या हुआ, आपका जो बैलेंस हो गया आपका प्रोफाइल का वो सेव हो गया, राइट। सो दैट इज अ थिंग, दैट इज व्हाट रीबैलेंसिंग थिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ द रीबैलेंसिंग। आप नोट्स में जाओगे बहुत अच्छे से बढ़ पाओगे, हमने बहुत सिंप्लीफाई से किया है। और इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज कमेंट इट डाउन, वी विल मेक अ सेशन फॉर यू गाइस। नाउ द कंस्ट्रक्शन क्रू टू बिल्ड इट योरसेल्फ और हायर अ प्रोफेशनल। So now the slide will say that build it yourself or hire a professional means आप जाने आप क्या बनने वाले, सर्टिफिकेट करा म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर, और क्या है प्रोफेशनल। म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफेशनल है, वो काम करता है एमपी के साथ, सॉरी एलसीएस के साथ, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आगे जाकर आपको समझ में आएगा व्हाट इज दिस।
तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ अभी भी आप काम कर रहे हो ना, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर, and everybody you have to state the things that whenever selling a mutual fund you have to understand the things, and अपना क्लाइंट को भी समझाना पड़ेगा कि वो प्रोफेशनल के साथ जाओ, नॉट बाय योरसेल्फ। भाई देखो, अगर आप प्रोफेशनल्स के साथ जाओगे तो उसमें रिटर्न थोड़ा सा कम आएगा, दैट इज फेयर। इफ यू आर पिकिंग अ सेम स्टॉक, सेम एसेट, सेम थिंग्स, उसमें रिटर्न कुछ कम आएगा क्योंकि वहाँ पर चार्जेस होता है, एमसी चार्जेस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का चार्जेस, थोड़ा चार्जेस होता है, उसमें आपका रिटर्न कम रहेगा। बट व्हाट यू विल गेट इफ someone don't have the time to follow the regular stock market, then he can go for the professional management. If someone don't have the knowledge of the stock market, he can go for the mutual fund. If someone don't have the time, he don't have the understanding, he don't know how these things work. So this is what mutual fund distributor have to show their client that this is fine. You have to choose the mutual fund funds, not go for yourself. आपको पता है म्यूचुअल फंड का जो एमसीज होता है, आप अगर जाओगे किसी भी फंड का जाओगे उसमें नेगेटिव रिटर्न नहीं होता, बहुत कम होता है, बहुत कम, क्योंकि ऊपर R&D का टीम है, रिसर्च का टीम है, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर है उसका, जिसका बहुत साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, राइट। इफ यू लुकिंग फॉर द दिस म्यूचुअल फंड्स कंपनीज, तो उसमें बहुत सारे हेज फंड, बहुत सारे उसको क्या बोलते हैं, सब भूल चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए, हेज फंड जो स्टार्टअप के लिए फंड करते हैं, बोल रहे हैं आप कमेंट में, भूल चुका हूँ, याद नहीं आ रहा है। तो उन सबको रिटर्न भी बीट किया है, और बहुत कम ही म्यूचुअल फंड है जिसका माइनस में रिटर्न है। सो इफ यू थिंकिंग दैट यू विल अ गुड इन्वेस्टर एंड यू आर फुल टाइम इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, पर आप म्यूचुअल फंड से कभी पीछे हो, बिकॉज उसके बाद लार्ज बाइंग पावर होता है, वो स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफाई कर सकता है, उसको बेस्ड इन मिल सकता है, आईपीओ प्री आईपीओ में उसका सेटलमेंट हो सकता है। बहुत सारे चीज म्यूचुअल फंड को यहाँ पर, म्यूचुअल फंड हाउसेस को यहाँ पर, एएमसी हाउसेस को यहाँ पर बेनिफिट्स मिलता है। तो इफ यू आर इन्वेस्टिंग ऑन म्यूचुअल फंड, इफ यू गॉट दिस थिंग्स। सेकंड, इफ यू लुक फॉर दिस पीपीटी, कैन यू डू द जॉब, एबिलिटी एंड टाइम। ऑफ कोर्स मैं जो बोला, आपके पास टाइम है, इफ यू डोंट हैव देन हाउ कैन यू इन्वेस्ट। एंड सर, डू यू वांट टू डू द जॉब, आपका क्या इंटरेस्ट है और प्रायोरिटी है। आप क्रिकेट खेलते हो, सचिन तेंदुलकर हो, आपका काम करना क्या है, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना, आपका काम नहीं है इन्वेस्टमेंट करना। तो जिसका काम जिसको सो पे, दूसरा का है कमेंट कर देना, ठीक है। सो ये सब चीजें होता है। इफ यूर, क्योंकि यहाँ पर हमारा थोड़ा सा पीपीटी में गड़बड़ हो चुका है, आपको मैं पीपीटी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको आपसे जाके देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इफ यू आर गोइंग फॉर द इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यू आर थिंकिंग दैट उस पर अगर जाऊंगा तो मुझे तो मनी पे करना होगा, और उसके लिए आपको सर्विस दे रहा है ना, आपका दिन का 6-7-8 घंटा उसमें बच रहा है। इफ आर लुकिंग फॉर ट्रैकिंग फॉर द स्टॉक मार्केट, आपको 6-7-8 घंटा देना पड़ेगा, इफ यू आर नॉट अ लॉन्ग टर्म बायर। सो आपको म्यूचुअल फंड देगा, और उसमें बहुत सारे बिग एजेंसी से उनका रिटर्न बहुत अच्छा है, उसमें लिक्विडिटी भी है, बहुत अच्छा लिक्विडिटी, उसको स्टॉक पिकिंग में प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल रहा है। आपने सोचा मेरा तो 2% फीस देना है, पर 2% फीस देने के चक्कर में आप अपना जॉब ही, आपका जो मेन बिजनेस है, मेन काम है, मेरी नौकरी, वही नहीं कर पा रहे, तो आप लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे। सो इफ यू आर नॉट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, दिस इज द वेरी गुड ऑप्शन, एंड इफ यू आर आल्सो द स्टॉक मार्केट, दिस इज माय सजेशन, प्लीज मेक अ स्मॉल पोर्टफोलियो ऑन द म्यूचुअल फंड, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। दिस इज द हिडन कॉस्ट, द प्राइस ऑफ इमोशनल मिस्टेक। हम लोग जो होता है ना इंडिविजुअल इन्वेस्ट, हमारा इमोशंस काम करता है कि अंबानी भाई ने कुछ बोल दिया तो हम लोग खरीद लेंगे, हर्षद भाई ने कुछ बोल दिया तो हम लोग खरीद लेंगे। पर म्यूचुअल फंड का जो फंड है वो लोग कभी नहीं खरीदता, उनका थिंकिंग हमेशा रैशनल होगा, उनका काम ही है आपका जो भी रिटर्न है इसको बेस्ट से बेस्ट देना, वो लोग कभी नहीं ऐसा करेंगे, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट रिटर्न। सो वो लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। दिस इज माय पर्सनल सजेशन, प्लीज गो विद द म्यूचुअल फंड्स। ओके, so this is the PPTs and this is the topics we have in this particular chapter we already covered. Now I am showing you the notes we had that. Okay, मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको स्क्रीन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो, तो ये जरा चैप्टर 1 का है, ये फाइनेंशियल फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दिस इज स्टार्ट विथ व्हाई वी आल्सो डिस्कस एंड द एग्जांपल्स वी got it down. The 2 pillars, savings and investment, how that work. This is also as a theory part. If you have to learn this, please go with the readings. I think that will help you. इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज मेक इट श्योर।
व्हाट इज इन्वेस्टिंग, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग हो गया, प्राइमरी गोल आपका क्या है, टिपिकल ट्राइंगल डिजाइन मैंने बोला है आपको, की बेनिफिट, प्राइमरी रिस्क, ये सब आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। सेविंग्स, प्रीसिट्स एंड इन्वेस्टिंग, ट्रेड ऑफ क्या है, ये सब आपको एक बार पढ़ोगे नहीं आ जाएगा, अगर नहीं आएगा प्लीज कमेंट इट डाउन, आई विल एक्सप्लेन। दिस इज द इन्वेस्टर टूल किट, द मेजर एसेट क्लासेस, फिक्स्ड इनकम मैंने बोला, इक्विटी मैंने बोला, और रियल एस्टेट, कमोडिटीज, ऑल द थिंग्स आर नोट written down. The risk is there, inflation risk, market risk, or trade risk, all things are there. There's the human factor, how our own behavior affects our money. I talk the hard mentality loss और जो मैंने इन सब के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ये पर्सनल ब्लूप्रिंट इज दिस एलोकेशन, हाउ यू मेक द एसेट एलोकेशन, ये सब कुछ यहाँ पर है। लो टू सेल हाई, ऑल दिस थिंग्स इज देयर। सो देयर इज दैट प्रोफेशनल लेना चाहिए और खुद से ध्यान रही है, तो ऑल थिंग्स आर देयर। Now, so there is the things, but we prepare also a new thing for you guys only. That is like this image. If you look for this image, in this image you will find all the topic we have discussed in this chapter. There is all the things. If you look for the step 1, there's the start with the ask why. Then is the inflation. We talk about that. Then is the true value dreams. Then the actionable goals, mentality, prioritize, and set a goal. And if you look for the then step 2, there is also all the things, liquidity, safety, and returns. And the step 3, the asset class and fixed income and real estate. How that will help you if you're going for the exam, and before the exam, if you just see this, if you just saw this, just take a look on this picture, in your mind all the things automatically all the things will come, right? And that will help you a lot for understanding the full the chapter and conceptually clearing the concept. And I think please make sure before going for the exam, just check this image, and we are preparing this image for the all the chapter, and that will help you a lot. 1 minute of it. So अब जाके पूरा वीडियो देखो पहले, आपको सेटिंग्स में जाके उसका स्पीड स्लो कर लो, वीडियो देखो, देन यू गो फॉर द अवर नोट्स। जो आप हमने जो नोट्स बनाया दिया है आपको, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज गो विद दैट नोट। आपको उस नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लो, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, आपने देखा ही। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लो बहुत अच्छे से, देन यू कैन गो फॉर द NISM नोट्स। NISM नोट्स में जो कुछ भी है, ऑल द थिंग्स यू हैव टू टेक इन केयर, ऑल द थिंग्स जो कुछ भी है A to Z आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। वंस यू कंप्लीटेड दैट, देन आपको ये तीनों चीज, वीडियो, हमारा नोट्स और NISM को मिस नहीं करना, प्लीज NISM को मिस मत करना। कुछ चीज होता है कि हम लोग मिस कर जाए, आपको एक और सेशन में दे दूं। If you want to make this very good channel, NISM distributor का आपको रियल फाइनेंस से पेयर है ना, तो there is one PDF, NISM Mutual Fund Foundation. Please read the first 2 or 3 chapters. They started from very basic. So that will help you a lot. So if you have the time, you can read that. If you don't have, then please go with this. But if you love this finance और आपको अच्छे से समझना, तो आपको उस चैप्टर, मेरा सजेशन ये पर्सनल सजेशन है, आप जाके वो पढ़ सकते हो, मैंने भी किया था मेरे टाइम पे। सो अब जाके आप पढ़ सकते हो चीज, एंड देन यू कम बैक and give the mock test. In the description you will get the link of our mock test. Please keep the mock test and provide your score, whatever you get, please comment it down, and please comment it down how the video lectures think and what are the improvement we can do for you, what are things you need। और आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, प्लीज कमेंट कर दो, हम लोग सभी के ऊपर एक वीडियो जरूर लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, very thank you।